हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल हैलाइड में हम फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, इट इज कलरलेस कंपाउंड। इट इज कलरलेस कंपाउंड। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज it is oily liquid or solid substance. Oily liquid or solid substance. Next physical property is it is soluble in organic solvents, but insoluble in water. Its density higher than water. So dear students, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज इट इज कलरलेस कंपाउंड्स। यह कलरलेस कंपाउंड होते हैं। इट्स ऑयली लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस। ऑयली लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। ये इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज इट्स डेंसिटी हायर देन वाटर। डेंसिटी हाई होती है वाटर के कंपेरिजन में। So physical properties of aryl halide completed. Next topic is chemical properties of aryl halide. We know that alkyl halide, preparation methods, chemical reactions, physical properties, monohalide, dihalide, trihalide and tetrahalides we are studying. And next topic is physical properties of aryl halide and chemical properties of aryl halide. Physical properties completed, and next topic is chemical properties of aryl halide. Chemical properties of aryl halide. Chemical properties of aryl halide, dear students. Number first chemical property is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रॉन्स रहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेजोनेंस को समझना पड़ेगा एरिल हैलाइड में। सो वी आर टेकन बेंजीन, क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, chlorobenzene. We know that lone pair of electron is free. Lone pair of electron is free. Electrophile mean E positive. Electrophile mean E positive, and electrophile added where electron density is higher. So reasonable structures of chlorobenzene is, number first reasonable structure is, we know that chlorobenzene, chlorine atom have 3 lone pair of electrons, and we know that lone pair of electron migrate on benzene ring and show double bond on Cl and carbon atom. Cl show positive charge, positively charged,
Cl show positive charge because lone pair of electron migrate on benzene ring and other bond same as first structure of chlorobenzene. We know that double bond migrate on benzene ring. डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन की जो रीजनेबल स्ट्रक्चर होती है उसमें हम देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेंजीन रिंग की ओर ये माइग्रेट कर रहा है, तो क्लोरीन एंड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से चार्ज क्या आ जाता है पॉजिटिव, क्लोरीन एटम पॉजिटिवली चार्ज शो करता है। एंड अदर हम देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माइग्रेशन शो कर रहा है। मीन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन एटम पर इसमें माइग्रेशन करते हैं जिसकी वजह से ये जो कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। मीन नेक्स्ट कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर, सो नेगेटिवली चार्ज। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थो पॉजिटिव कार्बन एटम सो नेगेटिव चार्ज and other reasonable structure is number third reasonable structure, mean second reasonable structure electron density is higher is ortho position and ortho position density electron density higher than other carbon atoms. So negative charged electrons migrate on benzene ring and show double bond character, and other double bond is shifted on para position, other double bond shifted on para position carbon atom. So para position carbon atom electron density is higher, so other reasonable structure is double bond. Dear students, second reasonable structure is here, and third is on reasonable structure. We know that chlorine atom show positive charge in second step, second reasonable structure, and negatively charged electrons migrate on benzene ring and show double bond, and other double bond is ortho and meta position, and double bond character Cl as it is second step, and fourth step negative charge form on para position. डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं बेंजीन रिंग की ओर, डबल बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होते हैं बेंजीन रिंग की ओर, एंड ऑर्थो पोजीशन पर वापस क्या जाता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑर्थो पोजीशन, सो नेगेटिव चार्ज शो ऑन ऑर्थो पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें Cl पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट एज इट इज लाइक थर्ड स्टेप, एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन migrate on benzene ring and mean electron density is increases on para position, and position number 4 electron density increases on ortho position because bond pair of electrons migrate on a benzene rings ortho position, so electron density is higher on ortho position and show negative charge. So dear students, last step number 5 is negative charge electron mean lone pair of electrons migrate on benzene ring, mean double bond is formed, and a double bond present on Cl and carbon atom, and
Cl and carbon atom double bond shifted, mean bond pair shifted on chlorine atom. So chlorine atom get total 6 electrons, mean 3 lone pair of electrons. This structure like first structure, because first structure chlorine atom show 3 lone pair of electrons, and structure number 5 chlorine atom show 3 lone pair of electrons. Only difference is bond pair of electrons, mean opposite bond pair of electron present on first step and fifth step of reasonable structure of chlorobenzene. So dear students, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर नंबर फिफ्थ में ओनली चेंज होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं स्टेप्स में, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं टोटल स्ट्रक्चर्स रिजोनेबल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं. और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस. रिजोनेंस के नाम से ये प्रोसेस इसमें जानी जाती है. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रिजोनेबल स्ट्रक्चर्स से हम समझने का प्रयास करते हैं. वी नो दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन शो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरिजन अदर रिजोनेबल स्ट्रक्चर्स. हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इस रिजोनेबल स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इसमें शो कर रही है, जिसकी वजह से हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन ई पॉजिटिव चार्ज positively charged nucleophile, positively charged electrophile attack on benzene ring, and product is formed ortho and para position. Cl, chlorine is a ortho and para directing group. Ortho and para directing group. ये स्टूडेंट्स 11th क्लास में चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन में आपने इसमें पढ़ा है कि Cl जो होता है क्लोरीन होता है वह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. मीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक मैक्सिमम कहाँ करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाता है. कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. एंड प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. मीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनने के. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं. ये हमने रिजोनेबल स्ट्रक्चर एंड रिजोनेंस समझा है, और जो भी इसमें प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, उसके बारे में हमने बात की है. अब हम इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है और कैसे ये कंप्लीट होती है. नंबर फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करें प्यारे बच्चों, नंबर फर्स्ट रिएक्शन इसकी है, इसमें ए हम इसमें लिख देते हैं. फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम लिखते हैं क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन में बात करें तो क्लोरीनेशन के लिए हम क्या लेते हैं, मीन हमने एक लिया है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं Cl2 से रिएक्शन करते हैं लाइट के प्रेजेंस में. सो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene is formed and HCl removed in this reaction. तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. प्यारे बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सेकेंड रिएक्शन
सेकेंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बारे में बात करेंगे तो सल्फोनेशन में रिएक्शन हम करते हैं, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे मीन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHSO3H। OHSO3H मीन H2 and SO4, H2SO4. So dear students, OH show negative charge and SO3H show positive charge. So electrophile is SO3H. हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है एंड SO3H इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सो SO3H add ortho and para position because SO3H is ortho and para directing. We know that on resonance, we know that resonable structures of chlorobenzene ortho and para positions electron density is high than other positions. So electrophile add easily ortho and para position. So reaction is completed. Cl and SO3H add Cl and SO3H and OH and H hydrogen of ortho and para and OH negative add and H2O removed in this reaction. H2O water is removed in